everyone, a very warm welcome to my channel Ritu Garg Maths Classes. Today we are going to take up the topic of indices and surds. This topic is very useful from the point of view of competitive examinations. चाहे आपका वो क्लैट का एग्जाम है, चाहे बैंक पीओ का एग्जाम है या फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है, this topic is covered in almost each and every syllabus for the competitive exams. So let's start with the today's topic, indices and surds. The very first word is indices. इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि indices जो वर्ड है ये कहाँ से आया. The simple word is index, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में पावर या एक्सपोनेंट बोलते हो, उसी का प्लूरल फॉर्म आ जाता है indices. So index is a singular form, it is for one term, one power, one exponent, and indices it's a plural form. For example, you have the term a raised to power n. Then a is known as the base and this n is known as the index. Index means exponent, or you can say in the simple word power, जिसको आप simple word में बोलते हो a raised to the power n. तो जो n है that is the index. So first of all we will be doing these laws of indices. इनके क्या laws हैं, क्या formulae हैं, वो करेंगे, and then we will start with some basic questions. So the very first law of indices is a raised to power m into a raised to power n. देखो bases are same, getting multiplied, so powers will get added. अगर आपके पास दो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा टर्म तो पावर्स विल गेट एडेड. सेकेंड इज a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n. बेसिस आर अगेन सेम, गेटिंग डिवाइडेड, देन पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड. थर्ड इज a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n. ये जो दो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. नेक्स्ट इज a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m. नाउ वी आर हैविंग टू डिफरेंट बेसिस बट द इंडेक्स इज सेम. देन अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है बेसिस में इट विल बी मल्टीप्लाइड a इंटू b. बेसिस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी होल रेज टू पावर n बिकॉज इंडेक्स सेम है. नेक्स्ट इज a raised to power m divided by b raised to power m. Bases different है लेकिन division में है with the same exponent. So you can write it a upon b whole raised to power m. Next is a raised to power 0. Anything raised to power 0 is 1. And the last formula is a raised to power minus m. आपके पास किसी टर्म का नेगेटिव इंडेक्स आ गया, नेगेटिव पावर आ गई, तो आप क्या करते हो 1 by a raised to power m. ये सारे लॉज ऑफ इंडिसेस यू हैव ऑलरेडी डन इन योर क्लास 8. सो दिस वाज अ जस्ट रिकैपिचुलेशन, रीकैप था, उसकी रिविजन थी. विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज वी विल बी टेकिंग अप सम बेसिक क्वेश्चंस. Let's take up some basic level questions. I have taken first 3 questions in this slide and then we will be taking up more questions. Let's come to the solutions. For the first question, we have been given 289 is equal to 17 raised to power x by 5. And everybody knows, आपको पता है 289 is nothing else but 17 square. आपने कोशिश करनी है इसको सेम बेस के एक्सपोनेंट में, इंडेक्स में लिखने की. When bases are same, powers get equated, so we get 2 is equal to x by 5. So x is equal to 10. This is the answer for first question. Such easy questions, maybe ये Phillips की फॉर्म में आए, maybe ये MCQs की फॉर्म में आए. जनरल पैटर्न जो रहेगा वो आपका MCQs का रहेगा. Let's come for the second solution. 5 raised to power x is equal to 3125. 3125. इसको भी आपने कोशिश करना है कि 5 के मल्टीपल्स में लिखो. अब क्या करना है आपको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और देखना है कि 5 कितनी बारी आ रहा है ताकि आप 3125 तक पहुंच सको. सो इट विल बी 5 raised to power 5. अगेन द बेसिस आर सेम, पावर्स गेट इक्वेटेड. सो x is equal to 5 is the answer, but we have not been asked as 5 raised to power x.
we have been asked as 5 raised to power x minus 3. Read the question carefully. हमें यहाँ पर नहीं छोड़ देना उसको. Therefore 5 raised to power x minus 3 is equal to, put down the value of x. x की वैल्यू आपके पास आई है 5, so 5 minus 3, this becomes 2. 5 raised to power 2, that is 5 square. So 25 is the answer. कॉमन एरर ये आता है बच्चे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 ढूंढते हैं MCQs में, वहाँ पे ऑप्शन में 5 होता है, फटाफट देखा 5 टिक कर दिया, दैट वुड बी इनकरेक्ट. सो आपको देखना है कि आपको पूछा गया क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर छोड़ना है. लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव बीन गिवन a raised to power 2x plus 2 is equal to 1. I just told you हमें कोशिश करनी है बेसिस सेम हो ताकि पावर्स इक्वेट हो सके. 1 को आप कैसे लिख सकते हो, a raised to power 0. We just did it in the laws of indices. बिल्कुल शुरू में वही किया है. Bases are same, powers get equated. Let's simplify. प्लस 2 है, उधर जाके माइनस 2 हो गया. So 2x is equal to minus 2. Divide both sides by 2 and you get x is equal to minus 1. While leaving your answer, check it कि आपको वही पूछा गया था तो वही छोड़ना है. Let's take up some more questions on the same topic. These questions are somewhat on a higher level. अब धीरे धीरे हम questions का level increase करेंगे. For example, you can see fourth question. We are going to start with the solution. For fourth question, 2 raised to power 4 whole raised to power half whole raised to power x is equal to 256. ये आपको given है and you have to find out the value of x. Let's simplify. Just look at the internal factor. a raised to power m raised to power n. कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a raised to power m into n means पावर्स ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है. So it will be 4 into 1 by 2. कितना रह गया, 2. Next is 2 raised to power 2, that is 4 whole raised to power x वैसे ही पड़ा है. It means now I should write down 256 in the powers of 4 ताकि मेरे पास bases same आ जाए और powers equate हो जाए. So what is 256? 16 into 16. 16 क्या होता है, 4 square. So square का square कितना हो गया, 4 raised to power 4. आप इसके 256 के फैक्टर्स बना के देखोगे, उसको 4 की पावर्स में लिखोगे तो you will get 4 raised to power 4 as 256. Now you can see bases are same getting compared, so powers get equated. You get the value of x is equal to 4. That is the answer. इतने छोटे छोटे MCQs हैं और really अगर आपके पास laws of indices clear है, properties clear है, तो आप बहुत जल्दी attempt कर सकते हो. Next is fifth question. 16 raised to power 9 divided by 16 raised to power 4 into 16 raised to power 3 is equal to 16 raised to power x. Then find x. अब आपके पास यहाँ कई सारे प्रोसेस आ गए, कई ऑपरेशन आ गए, डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया. तो पहले कौन सा करना है, you will have to remember the rule of BODMAS. D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. This is the order. So सबसे पहले जो आपके पास ऑपरेट होना है वो होनी है डिवीजन. So these two terms. Now you look at the terms. Bases are same, getting divided. So powers get subtracted. अभी हमने laws of indices में किया था. A raised to power m divided by A raised to power n क्या बनेगा, A raised to power m minus n. So powers की subtraction होनी है. 9 minus 4 कितना बचा, 3. बाकी terms as such. Now the next property. Bases are same getting multiplied, so powers get added. अब आपके पास a raised to power m into a raised to power n आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, a raised to power m plus n. Powers will get added. Base 16 है, powers add हो गई, 5 plus 3 8. Next law, bases are same getting compared, so powers get equated. So you get x is equal to 8. That will be the answer. Let's start with the solution of question number 6. Find x if x raised to power 0.4 divided by 16 is equal to 32 divided by x raised to power 2.6.
इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं। डिवीजन का मतलब कुछ इस तरह से होता है, आपके पास a डिवाइडेड बाय b मींस a अपॉन b फ्रैक्शन है, और इसको भी इसी तरह से आपने ठीक से लिख लेना है। वेरी इजीली यू कैन सी द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज टेकिंग द स्टेप। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने on LHS, bases are same, getting multiplied, powers get added। आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का वेरी फर्स्ट लॉ लग रहा है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। सो पावर्स को ऐड करना है, 0.4 प्लस 2.6 ऐड करोगे कितना आ गया 3। और इस तरफ आप 32 इंटू 16 नहीं करोगे, दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। पहले सारा मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टर्स बनाओगे, दैट विल बी लेंथी। हमें टाइम सेविंग करना है, काफी सारा इसमें टाइम बचाना पड़ता है। सो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 इंटू 4 इज 32, 8 into 2 is 16. So that you can see 8, 8, 4 2s are 8. It means 8 का भी क्यूब ही बन रहा है उधर, और इधर बन रहा है x क्यूब। So x cube is equal to 8 cube. Bases are different but powers are the same. So bases have to be the same. So x is equal to 8. So this is the answer for question number 6. Let's start with some more interesting questions. Question number 7. Let's start with the solution. 17 raised to power 3.5 into 17 raised to power 7.3 divided by 17 raised to power 4.2 is equal to 17 raised to power x. फिर से काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो आपको अभी बताया था जैसे आपने वही चीज़ यूज़ करनी है। बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले डिवीजन आ रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि शुरू वाले स्टेप में मिलेगी आपको, वो यहाँ पे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिवीजन का प्रोसेस सिंप्लीफाई करेंगे। ये बाकी टर्म्स एज सच, बेसिस आर सेम, गेटिंग डिवाइडेड, सो पावर्स गेट सबट्रैक्टेड। a raised to power m divided by a raised to power n gives you a raised to power m minus n. So 7.3 minus 4.2 करना है वेरी इजीली। 0.3 में से 0.2 गया, कितना रह गया 0.1, और 7 में से 4 गए 3। सो इट इज 7 raised to power 3.1, और राइट हैंड साइड आपको ऐसे ही लिखनी है। नाउ बेसिस आर सेम, गेटिंग मल्टीप्लाइड, पावर्स गेट एडेड। 17 raised to power 3.5 प्लस 3.1 ऐड करोगे 6.6। Again the bases are same, getting equated, so powers get equated. So x is equal to 6.6. This is the answer for question number 7. Now we are going to start with question number 8. It's a very standard question, 8th question, generally comes in exams. Question number 8. a raised to power x is equal to b, ये गिवन है आपको, और जो नेक्स्ट वैल्यू गिवन है वो है b raised to power y की। इसका मतलब आपको दोनों साइड्स पे होल raised to power y कर देना है, रेजिंग बोथ द साइड्स टू द पावर y। ये आपने दोनों साइड्स पे किया, जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हो, क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हो, वैसे ही रेजिंग बोथ द साइड्स टू द पावर y। यहाँ पे आपका रूल लग गया एक्सपोनेंट्स का, पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो गई, और ये b रेज टू पावर y की वैल्यू आपको कितनी की हुई है c। सो आपके पास आ गया a रेज टू पावर xy इज इक्वल टू c। अब आगे क्या करें, वी हैव टू फाइंड आउट c रेज टू पावर z। इट मींस रेजिंग बोथ द साइड्स टू द पावर z। आई एम राइटिंग डाउन द डिटेल्ड स्टेप्स। जब आप एग्जाम में करते हो तो काफ़ी ब्रीफ हो जाता है, काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, अगर अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। सो आपको सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से आपके पास वो सॉल्यूशंस आएंगी। फिर से आपके पास प्रॉपर्टी आ गई, a रेज टू पावर एक्स वाई जेड, पावर्स मल्टीप्लाई होगी, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, सारा इकट्ठा मल्टीप्लाई हो गया। c रेज टू पावर z ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी आपको वैल्यू नहीं पता, कीप इट एज सच। x y z, this value is given to you as 1, therefore a is equal to c रेज टू पावर z। आपको c रेज टू पावर z की वैल्यू पूछी गई थी, कितनी वैल्यू आ रही है a। सो c रेज टू पावर z की वैल्यू कितनी आ गई a। दिस इज द आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इन 9th क्वेश्चन 16 into 8 raised to power n plus 2 is equal to 2 raised to power m।
उस साइड पे आपके पास जो बेस है वो 2 की पावर में है, तो बेस 2 है। इसका मतलब है कि आपको इनको भी 2 की पावर्स में ही रिड्यूस कर लेना चाहिए। 16 को अगर आप 2 की पावर्स में रिड्यूस करोगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओगे, तो यू विल गेट 2 रेज टू पावर 4। 2 इंटू 2 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। और ये जो 8 है इसकी भी पावर आप 2 में ला सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 क्यूब विल बी 8। बेसेस आर सेम गेटिंग मल्टीप्लाइड से पहले एक चीज करनी पड़ेगी कि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर अप्लाई हो रही है a रेज टू पावर m इंटू n, तो पहले वो सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको ये दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो इट बिकम्स 3n प्लस 3 इंटू 2 6। द कॉमन एरर इज बच्चे इसको 3 इंटू n तो कर लेते हैं लेकिन प्लस 2 वैसे ही रखते हैं। सो नो, 3 इज टू गेट मल्टीप्लाइड विद दिस होल टर्म। टेक केयर, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो पावर्स गेट एडेड। Therefore 2 raised to power 3n plus 10 is equal to 2 raised to power m। ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास। Bases are same, getting equated, so powers get equated as well. So you get m is equal to 3n plus 10. Now we'll be taking up some more questions. Taken up some few more questions, so let's start with the solutions. Solution for question number 10. काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको इसको हर एक टॉपिक के लिए, सो वील ट्राई कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस दे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। 81 रेज टू पावर 2.5 इंटू 9 रेज टू पावर 4.5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4.8 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर x। अब देखो आपके पास जो RHS में बेस है वो 9 है, सो आई ट्राई कि LHS पे जितनी टर्म्स है वो भी 9 बेस में आ जाए। हाउ? 81 है, दैट कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर। ऊपर की जो टॉप मोस्ट पावर है वो वैसे के वैसे ही पड़ी है, उसको मैंने चेंज नहीं किया। आई हैव जस्ट रिटन डाउन 81 एज 9 स्क्वायर। दिस इज ऑलरेडी इन द बेस ऑफ 9, नो चेंजेस। 3 raised to power 4.8, this can be written as 3 raised to power 2 raised to power 2.4, because आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या बनेगा, 3 raised to power 4.8। सो टर्म शुड नॉट गेट ऑल्टर्ड, आपको सिर्फ उसको ध्यान से मैनेज करना है, मॉडिफाई करना है, ताकि वो 9 की पावर्स में आ सके। नाउ हेयर 9 raised to power m into n, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2.5 becomes 5। 2.5 into 2 करोगे 5.0, so it is 5। 9 raised to power 4.5 as such। और यहाँ पे क्या बन गया, 3 square is 9। Now I have got all the terms in the power of 9। फिर कुछ ऑपरेशंस आ गए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपको पता है बॉडमास का रूल है, तो हम सबसे पहले डिवीजन के लिए जाएंगे। 9 raised to power 5 into bases are same getting divided, so powers get subtracted। 4.5 minus 2.4, आप चाहो तो रफ वर्क यूज कर सकते हो, अदरवाइज मेंटली भी कर सकते हो। वेरी सिंपल, 0.5 में से 0.4 गया 1, 0.1 आ गया, 4 में से 2 गए 2। कोई कैरी करने की जरूरत नहीं है, कोई सिंपल सब्ट्रैक्शन है। फिर बेसिस आर सेम गेटिंग मल्टीप्लाइड, पावर्स गेट एडेड। 5 plus 2.1 gives you 7.1। bases are same getting compared, so powers get equated। So x is coming out to be 7.1। While leaving the answer आपको चेक करना है कि हमसे x ही पूछा गया था तो वहीं छोड़ना है, अगर कुछ और पूछा गया है तो उसका नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना है। So this was the solution for question number 10। Let's start with question number 11। If 2 raised to power x plus 2 raised to power x plus 1 is equal to 48, then find x raised to power x। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है क्वेश्चन। 2 raised to power x plus 1 means 2 raised to power x into 2 raised to power 1। आपको जनरली ये टर्म मिलती है और आप ये बनाते हो, कहते हो बेसिस आर सेम गेटिंग मल्टीप्लाइड, पावर्स गेट एडेड। अब मेरे को पावर्स को स्प्लिट करना पड़ा, टर्म तो वही है, देखो आपके सामने, उसको सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है। 2 raised to power x common, these are two terms, उनमें से दोनों में 2 raised to power x है, so I'm taking it common। फर्स्ट टर्म में क्या रह गया 1 प्लस सेकेंड टर्म में बचा 2 raised to power 1, that is 2। so it is 2 raised to power x into 3। ये जो 3 है इधर डिवीजन में जाएगा RHS में,
बिकॉज मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म RHS में डिवीजन में जाएगी. 48 डिवाइडेड बाई 3 बिकम्स 16. अब आपके पास ये LHS 2 की पावर्स में है. आई विल ट्राई कि RHS भी 2 की पावर्स में आ जाए. 2 raised to power 4 क्या होता है 16. So when the bases are same, getting compared, powers get equated. X is equal to 4, but that is not the answer. हमसे पूछा गया था x raised to power x. Therefore x raised to power x. अब ये कॉमन एरर क्या आता है, वो MCQ में ऑप्शन में 4 भी दे देते हैं पेपर में, और जैसे ही देखा 4 हम टिक कर देते हैं. दैट इज अ कॉमन एरर. प्लीज आपको क्वेश्चन का आंसर छोड़ने वक्त देखना है कि पूछा क्या गया है. x raised to power x, 4 raised to power 4, that is 256. So 256 is the final answer for question number 11. Let's start with the next question. Very important question from examination point of view. You have been given some numbers. उसमें से आपको greatest ढूंढना है. Find the greatest number among 3 raised to power 50, 4 raised to power 40, 5 raised to power 30 and 6 raised to power 20. सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है. एंड इतना टाइम होता नहीं कि हम इसको सॉल्व कर सकें. सो कोई ना कोई हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. इन नंबर्स का जो कॉमन पावर का जो मल्टीपल है वो टेंस है. सो उसको सेपरेट कर लेते हैं. 3 raised to power 50 can be written as 3 raised to power 5 whole raised to power 10. जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेगा तो 5 into 10 50 ही बनेगा. सो वी हैव नॉट डन एनी ऑल्ट्रेशन टू द टर्म, जस्ट मॉडिफाई किया उसको. 4 raised to power 4 whole raised to power 10. कॉमन जो मल्टीपल आ रहा था 10 वो मैंने ऊपर रखा है. 5 raised to power 3 raised to power 10 and 6 raised to power 2 raised to power 10. You can see terms अभी वहीं के वहीं है. That is 3 raised to power 5. सॉल्व करोगे 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 3s are 243. जो 3 की 5th पावर है आप रफ में सॉल्व कर सकते हो. 243 आएगी. होल रेज टू पावर 10 ऐसे ही रखना है आपने. 4 रेज टू पावर 4 इट विल बी 256. 5 रेज टू पावर 3, 5 5s are 25, फिर 5 से क्या 125. 6 रेज टू पावर 2 मीन्स 36. अब सबकी जो पावर है वो 10th पावर है. तो नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि जैसा नंबर बड़ा होगा उसकी पावर भी बड़ी होगी. सो उसका जो पूरा सोल्यूशन होगा वो नंबर होगा वो बड़ा होगा. इन सब में से जो ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है दैट इज 256. ये 256 रेज टू पावर 10 किस नंबर के लिए आया था, 4 रेज टू पावर 40 के लिए. सो 4 रेज टू पावर 40 इज द ग्रेटेस्ट. ये आपके पास जो 4 नंबर्स गिवन थे उसमें से 4 रेज टू पावर 40 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा. सो वी हैव टेकन अप अ फ्यू important questions in today's video from the topic indices. In our next video I'll be taking up the topic of surds. So very soon that video will be out. अगर आपको इन सारे questions में से कोई भी doubt है, if you have any query you can leave in the comment box. And do share this video with your friends who are also preparing for the competitive examinations. And do not forget to subscribe to my channel, Ritu Garg Maths Classes. You can also press the bell icon so that you can get the latest updates from our channel. That would be really helpful to you. Thank you.